Sadaqallahul Azim. Thank you. Audience, give a big round of applause for him. Now, program number 66, an English session is improve confidence and ideas. Now, I would like to call little ones of Jeb, Wahid and Ayat of class 3 come up on the stage to perform English recitation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected Chairman Sir, Director Sir, Principal Sir, all the teachers and my dear friend, I am Wahid Hussain from class 3 of Jept English Medium School. Today we all are gathered here to celebrate the 5th Winter Carnival of our school. Today on this special occasion of our school, I would like to recite a poem. My poem name is My Beloved. I learned of a man who struggled so hard when his calling was from the start. He spoke gently and only kindness he knew. His conviction in his message was true. The touch of his hand was as soft as silk to comfort a crying child, to mend his clothes or to the church, never complaining, he always smiled. So I love him more than all creation, my leader, my humble prophet. Ayat, come on the stage. Ayat is there, Ayat. I call the next event. आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू, लेकिन आप आए हमारे महफिलों में तो चांद तारे झिलमिलाने लगे, देखकर आपको दिल झूमने लगा है, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे. Now I would like to call Rafiq Jimam, Atiq Alam, Umme Kulsum and Rahmati from class 3 for English speech. देखिए, आप लोग पेरेंट्स को एक चीज़ इन्फॉर्म करना ज़रूरी है. आप जो ये प्रोग्राम हो रहा है, आप लोग जो देख रहे हैं होस्ट लोगों को, ये लोग सब क्लास 4, 5, 6 के बच्चे हैं. इससे पहले जब हम लोग का प्रोग्राम होता था, हम लोग क्लास 9, 10 के बच्चे को ज़्यादा प्रमोट करते थे. अभी लेकिन हम लोग छोटे लोगों को भी प्रमोट कर रहे हैं. क्लास 4, 5, 6, 7 के बच्चे आगे आके होस्ट करना ये कोई मामूली बात नहीं है. ये बच्चे को देखिए कितना इन लोगों के अंदर टैलेंट भरा हुआ है. और अभी जो कुछ देर पहले मैंने अनाउंसमेंट किया था, 2-3 बच्चा बाहर चला गया था, उसको फिर ढूंढ के लाया गया. देखिए, एक चीज़ आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा. ये एक ओपन ग्राउंड में प्रोग्राम हो रहा है. किसी से हम लोग कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स इश्यूज नहीं है. ये प्रोग्राम ओपन हो रहा है बोल के आप लोगों को बार बार बोला जा रहा है, अपने बच्चे को अपने पास रखिए. सेफ्टी थोड़ा आप लोग को देखना पड़ेगा. हम लोग भी देख रहे हैं बोल के आप देख सकते हैं. आरिफ सर, मुख्तार सर, अरशद सर, महबूब सर, ताहिर सर, मुदस्सिर सर, ये लोग नॉन स्टॉप खड़े हैं गेट पे. एक बार भी वो लोग नहीं बैठे हैं ना. अभी तक वो लोग टिफिन किए हैं आपके बच्चे के सेफ्टी के लिए ही. अरशद सर, आरिफ सर, आप लोगों से रिक्वेस्ट है सर, अभी शाम होने वाला है. सारे हॉस्टल्स के बच्चे को थोड़ा अंदर राइट हैंड लेफ्ट हैंड में कर दीजिए. जो बाहर इधर उधर है प्लीज़ एक बार राउंड लगा के लाइए और बाहर अलाउ मत कीजिए सर, प्लीज़. सर स्टार्ट सर. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Atiq Alam of class 3B, a student of Jeff English Medium School. It's an honor to stand here. I am very grateful to my parents, teachers and management of our school to giving me this opportunity to stand here today on this very exclusive occasion of 5th Winter Carnival of our school. I want to deliver a short speech on the life of Abu Bakr. Allah chose many men and women as his Prophet Sahaba. The Sahaba were companions of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They lived during the Prophet's time and believed in his message. They stood by him and rendered him every possible help. One of the Sahaba was Abu Bakr as-Siddiq. The Prophet's closest friend Abu Bakr was born into the tribe of the Quraysh, only 2 years younger than the Prophet sallallahu alaihi wasallam himself. Abu Bakr too was truthful and honest. He was a trader and traveled to many places. Abu Bakr was the first man to believe in Prophet sallallahu alaihi wasallam. He was persecuted for his faith, but he never gave up. Abu Bakr took ill barely 2 years into his caliphate. He died in 13 Hijri and was buried next to the Prophet sallallahu alaihi wasallam in Medina. The world will always remember Abu Bakr as-Siddiq.
one who had immense faith in Allah. May Allah grant us the character of the Sahaba and become pleased with us as He was pleased with them. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Let me introduce myself. I am Umayya from class 3, a student of JP English Medium School. A warm welcome to everyone present here for our annual function. Today I want to present a beautiful story for our Islam. The answer is guest. A man once came to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. He looked hungry and exhausted. When the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam walked on to ask if there was any food, he had begged there was nothing but water. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam then asked, who will have this man as a guest? An answering man looked up to a man of middle midst. He wished to host the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam guest. I will, O Messenger of Allah, he said. He took the man home and told his wife, a guest has come with him. Let us be generous with the Prophet guest. He told the answer his wife looked worried, but we have nothing in the house except a little food for the children. She whispered the man's side, listen to me, prepare the meal for our guest. Put out the lamp and lull the children to sleep. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Rafib Jima. My reading class 3B. Our school name is JF English Medium, a unit of Chancha Jabi Educational Public Tank. I want to recite a speech. My speech name is discipline. It make life simple and good. Student need discipline in school. It help us study well. Discipline build good habits. It make us responsibility with house. So discipline is the key to success. Thank you. रफीम जिमाम कमेर। देखिए ये बच्चे के बारे में थोड़ा बोलना ज़रूरी है। ये बारोगशिया से आता है। इनके पेरेंट्स मेरे से जस्ट कुछ दिन पहले मुलाकात कर रहे थे और बोल रहे थे कि सर अभी भी आप लोगों को बहुत छोटा स्कूल माना जाता है, कि आप लोग चाचल में बहुत छोटे हैं। तो मैं ये स्टेज के द्वारा आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो स्ट्रेंथ हमारे स्कूल पे है बच्चे का अभी 700 + 200 900 चांचल एंड हरिश्चंद्रपुर। मुझे जहाँ तक जानकारी है शायद इतने बच्चे कोई स्कूल पे नहीं है और ये स्कूल का उम्र अभी 5 साल हुआ है। बस आप लोग इस तरह का भरोसा और इस तरह का सपोर्ट दिखाते रहिए। बहुत जल्दी 2026 दिसंबर के अंदर इंशाअल्लाह हम लोग का नया कैंपस स्टार्ट होगा। हम लोग 1500 का भी आंकड़ा कंप्लीट कर देंगे। इसलिए मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंटली। हम लोग का जो एडमिशन चलता है, एडमिशन प्रोसेस जो होता है, इंक्वायरी वगैरह जो होता है, ये 5 साल में इस बार सबसे ज़्यादा इंक्वायरी हुई है हम लोगों के स्कूल पे। एडमिशन इंक्वायरी मोर देन 400 गार्जियंस जो हम लोग के स्कूल पे आए हैं और विजिट किए हैं, उसमें से 200 कंफर्म एडमिशन हो गया है। बाकी जो 200 बाकी है उसमें भी उम्मीद है 150 एडमिशन हो जाएगा। तो इसलिए मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप जो भरोसा, जो ट्रस्ट हम लोग के ऊपर रखे हैं, इंशाअल्लाह चांचल नहीं, मालदा नहीं, वेस्ट बंगाल में भी हम लोग रैंक में आएंगे इंशाअल्लाह, ज़रूर बहुत जल्दी आएंगे। बस इस तरह का होप हम लोग के ऊपर रखिए, क्योंकि वो भी बारोगचिया से बहुत तकलीफ करके बच्चे को भेजते हैं। उनको बहुत कुछ सुनना पड़ता है कि कौन सा स्कूल में पढ़ा रहे हो, स्कूल को चेंज कर लो, ये तो इस्लामिक स्कूल है। तो मैं इसलिए सब चीज़ आप लोग को बता रहा हूँ। आप लोगों को शायद बच्चे लोगों को देख के समझ में आ रहा होगा कि इन लोगों के अंदर किस तरह का टैलेंट्स है। ये टीचर्स ही है जो इस बच्चे को तराशते हैं, बच्चे को फॉरवर्ड करते हैं और बच्चे को सिखाते हैं। तो इस तरह का उम्मीद, इस तरह का भरोसा, इस तरह का हौसला आप लोग रखिए। इंशाअल्लाह हम लोग मेहनत करते रहेंगे। आपके बच्चे के अंदर जो हुनर है वो आप लोग खुद ब खुद आप लोग को दिखाई देगा। वंस अगेन वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल द पेरेंट्स, स्पेशली जो भी पेरेंट्स हर एक जगह से हम लोग को पास बच्चे को भेज रहे हैं, बहुत तकलीफ के साथ भेजते हैं, अपना गाड़ी से आप लोग भेजते हैं। हम लोग कुछ इंतजाम में लगे हुए हैं कि बहुत जल्दी हम लोग बस का भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाए। इसलिए आप लोग कोई उतना टेंशन नहीं लीजिए। जिस तरह का भरोसा, जिस तरह का सपोर्ट हम लोग को करते आ रहे हैं, बस करते रहिए। थैंक यू रफीफ, थैंक यू। Please give a big round of applause for them. All right, everyone, it's time to turn up the energy and let the magic unfold. जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, वो कदम वहाँ रखते हैं जहाँ कोई रास्ता नहीं होता. Now I would like to call the student of class 3 boys to perform an action song Kadam Badhao. It is requested to Abdul Majid sir. Please bring your student up on the stage.
Aziz sir, please make your team ready. Sabib Raza, Dilsan Ali, Sona Mandal, Ramesh, Sabib, Intisar, Araz Alamin, Sumaya Parvin, Dilsad, come near the stage. The name I am calling: Sabib Raza, Dilsan Ali, Dilsad Ali, Sona Mandal, Ramesh, Sabib, Intisar, Araz Alamin, Sumaya Parvin, Dilsad. I want to call out some teachers' name: Rosina ma'am, Meena ma'am, Dilwara ma'am, Ismetara ma'am, and Samsun ma'am. Please come near the stage. I would like to call some teachers' name: Samsun ma'am, Rosina ma'am, Meena ma'am, Dilwara ma'am, Ismetara ma'am. आप लोग थोड़ा प्लीज स्टेज के पास में आ जाइए. अगर इस्मेतारा मैम के बिहाफ में कोई उनके रिलेटिव्स यहाँ पे प्रेजेंट है, आई थिंक इसरत जहान की मम्मी, मैं उनको देख पा रहा हूँ शायद, इसरत जहान की मदर, इसरत जहान, आप मैम इज देयर. अच्छा, चलो प्ले द म्यूजिक मासूम.
Now I'd like to do one announcement, which is very important announcement for everyone. ये एक अवार्ड है हम लोग की तरफ से, हम लोगों ने टीचर्स को दिया है। कुछ टीचर्स हैं हमारे स्कूल पे, जब से उन लोगों ने स्कूल ज्वाइन किया है तब से ही उन लोगों को हम लोग LKG और UKG का क्लास देते हैं। उन लोगों का शिकायत भी बहुत है हमसे कि सर हम लोग क्या क्लास 1-2 के बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं। दे आर हाईली क्वालिफाइड, लेकिन वो लोग बखूबी बहुत अच्छे से LKG UKG के बच्चे को एकदम अपने माँ की तरह उन लोगों को तालीम देती है। इन लोगों के काम में कोई गड़बड़ी नहीं है बोल के इन लोगों को LKG UKG में ही रखा गया है। अब मैडम इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अब काम ठीक से नहीं कीजिएगा 1-2 में जाने के लिए। तो ये मैडम लोग फ्रॉम लास्ट 5 years, देखिए बच्चे को पढ़ाना बहुत टफ चीज़ है। टिफिन का इशू, बुक्स का इशू, पेंसिल, रबर, शार्पनर, ड्रेस, एवरी डे कंप्लेंट्स आर कमिंग, एवरी डे। अभी तो उनके पास कॉल भी आता है क्योंकि ग्रुप में उन लोगों का नंबर दिया हुआ है। ये प्रोग्राम के लिए भी उन लोगों के पास बहुत कॉल आया है। ये लोग जेन्युइनली हम लोग जो उन लोगों को देते हैं काइंड ऑफ ऑनरियम, जो भी हम लोग उनको देते हैं वो तो बहुत कम है, लेकिन ये लोग जो काम करते हैं तहे दिल से हम लोग इन लोगों का शुक्रगुजार करते हैं, क्योंकि बच्चे को पढ़ाना बहुत टफ चीज़ है। इसलिए मैं मैडम लोग को पहले ही बताया, मैं आज ही बता रहा हूँ, मैं एज ए प्रिंसिपल यहाँ पे आज काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा भी इस टीचिंग प्रोफेशन में जो मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, मुझे भी LKG का क्लास ही मिला था, वो भी राइम्स वाला। बच्चे को राइम्स पढ़ाना मेरा काम था। मैं वहाँ से उठ के यहाँ पे आया हूँ। तो मैं मैडम लोगों से भी गुजारिश करूँगा, टीचर्स लोगों से, हर एक टीचर्स से, मेहनत करते रहिए, रंग ज़रूर लाएगा। इंशाल्लाह आप लोग भी लाइफ में अच्छे से अच्छे जगह पे जाइएगा। अभी जहाँ है और बेटर आपको ऑप्शंस मिलेगा, तो एक काइंड ऑफ रिवार्ड यू कैन से, ए काइंड ऑफ स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम आवर स्कूल, मोस्ट केयरिंग मदर्स ऑफ जेफ्ट यू कैन से, क्योंकि बच्चे लोगों को वो लोग तहे दिल से बहुत केयर करते हैं, चाहे वो वॉशरूम का इश्यू हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। आई विल रिक्वेस्ट शमसुन मैम टू प्लीज़ कम फॉरवर्ड, रोजीना मैम प्लीज़ कम फॉरवर्ड, दिलवारा मैम प्लीज़ कम फॉरवर्ड, मीना मैम प्लीज़ कम फॉरवर्ड, इस्मतारा मैम प्लीज़ कम फॉरवर्ड। आप लोग सभी 5 टीचर आ जाइए। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि बाकी मैडम लोग अच्छा काम नहीं कर रही है, वो लोग भी अपना अच्छा से काम कर रही है, बट हम लोग को ऐसा लगा कि इन 5 सालों में हम लोगों ने इन लोगों को कभी कुछ अलग गिफ्ट नहीं दिया। ऐसा हम लोगों को एहसास हुआ कि नहीं, एक छोटा सा इनके सम्मान के लिए स्मॉल गिफ्ट, वेरी स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ जेफ्ट। ये 5 टीचर्स हैं और भी कुछ मैडम है अभी इन लोगों को ज्वाइन की है, लेकिन वो लोग नए हैं, जस्ट फ्रेशर्स। तो आप लोग दिल पे कुछ तकलीफ मत लीजिएगा, लेकिन ये लोग जो है, ये लोग तकरीबन 4-5 साल से बच्चे लोगों को बस पढ़ाते जा रहे हैं। और मैं आप लोग को थोड़ा और बता दूं, लेफ्ट हैंड में जो पहले खड़ी है शमसुन मैम, उनके 2 बच्चे हमारे स्कूल पे पढ़ते थे, अभी आलमीन में पढ़ते हैं, आलमीन मिशन, वहाँ के दोनों ही टॉपर्स हैं। आप जाके पता कर सकते हैं, एक सिलीगुड़ी में है, आई थिंक एक बजबज का ब्रांच में है, तो दोनों ही टॉपर्स हैं। मैं वो दोनों ब्रांच विजिट कर चुका हूँ, मुझे पता है। अगर आपके कोई रिलेटिव्स पढ़ते हैं, अभी वो लोग 12th में है, साइंस लेके पढ़ाई कर रहा है, वो बच्चे हमारे स्कूल से ही पढ़ के गए हैं। उसके पास में रोजीना मैडम है, उनके 2 बच्चे हैं, आहान रिस्क, वो भी हमारे स्कूल में ही पढ़ते हैं अभी, आई थिंक इन क्लास 6 और 5। उसके पास दिलवारा मैडम है, इनके ही बच्चे के बारे में मैं बोल रहा था, जो अभी हाल ही में अलीगढ़ में पढ़ाई कर रहे हैं। वो भी बच्चे हमारे स्कूल के ही है, अलीगढ़ का एंट्रेंस एग्जाम दिया, क्रैक किया, अभी वहाँ पढ़ाई कर रहा है अच्छे से, वहाँ भी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। उसके पास है मीना मैडम भी लोकल है। ये सारे टीचर्स लेकिन लोकल है, कोई लेकिन बाहर से हायर किए हुए नहीं है। इन लोगों को हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं, हम लोग खुद प्रॉपर ट्रेनिंग ले रहे हैं, फिर उन लोगों को सिखा रहे हैं। उन लोगों को भी हम लोग कई डिफरेंट सेमिनार में भेज रहे हैं, ताकि वो लोग जाके अच्छे से प्रॉपर वे में ट्रेनिंग लेके बच्चे को अच्छे से सिखा पाए। उनके पास में इस्मतारा मैम, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी नई इलेक्टेड वाइस प्रिंसिपल मैम मिस नफीसा वहाब मैम को प्लीज कम फॉरवर्ड एंड ऑनर देम प्लीज। एवरीवन क्लैप योर हैंड्स प्लीज विद सुविधा मैम, प्लीज दोनों मिलके दीजिए प्लीज। मैडम लुक दैट साइड, ऑल ऑफ यू क्लैप योर हैंड्स प्लीज। गार्जियन लोगों को बोल रहा हूँ, खास करके माँ लोगों को, यही बच्चे, यही गार्जियन है, यही टीचर्स है जो आपके बच्चे को तालीम दे रहे हैं। प्लीज 1 by 1।
नाजिर सर प्लीज बी रेडी। क्या बात है, स्टूडेंट के हाथों के अंदर जान नहीं रही क्या? थैंक यू सो मच मैम फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव जो आप लोग दिखाते आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। प्लीज टेक योर सीट्स। थैंक यू। देखिए मैंने सबका तारीफ किया लेकिन शायद लग रहा है एक इंसान का बोलने में भूल गया था। देखिए प्रेशर रहता है काफ़ी सारा। हमारे वन एंड ओनली मौलाना शकील सर, प्लीज़ आप थोड़ा आगे जाइए सर, आगे आइए प्लीज़, आगे आइए। शकील सर हम लोगों के जो है ये बहुत ही हुनर है, काफ़ी टैलेंटेड है, ऑलराउंडर है, ये हर एक चीज़ों में एक्सपर्ट है, पढ़ाई में, खेल कूद में, एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में, कुछ भी चीज़ों में। रात को 2 बजे बोलिए, 3 बजे बोलिए, 4 बजे बोलिए, और भी टीचर से मैं उन लोगों का कल आप लोगों से रास्ता कराऊंगा, लेकिन वो खड़े हैं सुबह से। देखिए मेरे से एकदम साथ, मैं नहीं बैठ रहा हूँ तो वो भी नहीं बैठ रहे हैं। तो ऐसा टीचर्स मिलना ये नसीब की बात है, ये सच बात है। आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज क्लैप फॉर हिम। और मौलाना साहब, इसके साथ साथ शफीकुल सर थोड़ा लेट आए थे, एसआर का चक्कर था। अब्दुल मोमिन सर भी बहुत हुनर टीचर, वो भी लेट आए थे। आई विल मेक द, मैं कल वो कर दूंगा, आज थोड़ा लेट चल रहे हैं हम लोग। थैंक यू सर। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। कंटिन्यू। Anger is a weakness, not strength, and it is never justified. Self-control is strength. Calmness is mastery. So control your anger because it is just one letter away from danger. Now a English drama, Anger Management, will perform. It is requested to Najis sir, please bring your team up on the stage. हेलो 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 हेलो। A very good evening to everyone. Today, on these signing days, I, Nazir Hussain, present you a very short skit on anger management. Anger is a weakness. People take it as a strength. Allah described that they swallow the anger. It is a spark lit by Satan in the heart of the son Adam. Then he burns the door with it. And tragically, his loved ones and every person behaves unreasonably like a lunatic without considering the outcome of his action. He commits only an indecent act. The action done during the anger can lead us to have a large wrath and we can end up in the hellfire. Now, everyone please join your hands together, bringing up our character of the play, who will truly tell us how harmful can anger be and what you can do to watering anger to your loved ones. Hassan's friend Abed comes to his friend. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you doing? I am great by the grace of Allah. Wasn't I disturb you, brother? No, it's fine. You are mostly welcome. By the way, what's brought you here, friend? Did you know that I was absent for 10 days? Actually, I had been to Kolkata for wedding ceremony. So I want your copy to complete my homework. Yes, I know. You went to Kolkata for 10 days. Don't worry, I am bringing my copy. Please have a seat. Thanks for loading. Take the copy, please. Hassan, please give me a glass of water. Take the water, please. Abed drops the glass and Hassan fires him up. You stupid! What have you done? Can't you sleep properly? You have spoiled my copy. Don't ever take them again. Get out of here. Hassan's father sees Abed crying while he is going out. What's happened to Abed? Why is he crying? That stupid fellow spilled water on my copy. That's why I just threatened him, father. Oh Allah, what should I do with the anger of my child? Please help me out. It's not a good for him to get angry. Hassan, come here quickly. What's the matter, father? Have a seat. What's make you so angry, son? I am losing my temper whenever something happens against me. You should control your anger. You were very angry on Abed. I saw him crying. I don't mean that, Papa. I was just threatening him. Well, I will bring a surprise for you.
What's the surprise, father? No, that's the surprise. I can't tell you right now. Hassan's father brings a few things for Hassan. Hassan, where are you, Hassan? Come here quickly. I have brought something for you. Hassan? He comes running to his father as he likes all of the kids and loves surprises. Yes, father, what have you bought for me? I have brought this wooden board and a few nails for you. What are these for, father? Well, this is a task which will help you to control your anger. Whenever you lose your anger, strike a nail into the plank. Hassan doesn't understand his father. He just takes it from his father and goes off. Hassan's brother Hussein colors the pictures using Hassan's crayons. Oh no! What have I done? I have broken his crayons. He is not going to spare me. Now he will be back. Oh no, who has used that? Hussein, was that you? Yes, bhai, it happened unintentionally. Oh bhai, I really don't mean it. Please pardon me. From next time, I will take care of your belongings with utmost care. Don't give me excuses. Just go from here. Hussein starts crying and goes to his father. Hassan goes, strikes a nail. Maid servant comes and put her shawl on Hassan's study table. How dare you to keep your shawl on my table? Beta, I put in there because it troubles me while cleaning. Just come and take it up from here. Okay, beta. Hassan goes and strikes a nail on the wooden plank. Likewise, whenever Hassan gets angry or he comes across something he doesn't like or somebody doesn't listen or act according to him, make him angry, he strikes a nail on the wooden plank. This goes on and soon all the nails were exhausted. Father, what do I do with this? Take out the nails from the plank and see the difference. Look at this, son. Each time you strike a nail into the plank, represent each time you said something bad to somebody in anger. Each bad word left a hole in somebody's heart. These holes can never repair, neither the one you created in a person's heart. Anger is a dangerous weapon, like a knife. When you put a knife in a man and drawn out, the wounds heals, but the scars remain. Similarly, when you hurt somebody or say some bad word, those act as an arrow and hurt the person's heart. Messenger of Allah said the story that the man is not who wrestle well, but the strong man is one who control himself when as fit as fiddle. Oh no, I never realized that I was hurting someone so bad that from now on I promise that I will not hurt someone so bad. Well, anger is from Shaitan, so conquer it. Better Allah exalted. Allah has pointed out in Surah Imran that controlling anger is one of the characteristics of our Prophet Muhammad. He has advised to recite each time we feel angry. Change your position. If you are standing, sit down. If you are sitting, lie down. Make sure yourself busy into something productive. Make a lots and lots of dua, and you will see how this technique of anger management will help you, inshallah. Okay, father, I will definitely try this out. Amazed as we have Sabib Reza and Dilsa Ali from class 4 ready to set the stage on fire with incredible Diniyat activity. Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. My name is Sabib Reza of class 4, a student of Jeff English Medium School, a unit of Chanchal Javed Education Public Trust. Today I want to recite Surah Takasur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. Thank you. Audience, please clap your hand. Now I would like to call Sona Mandal, Ramij, Savib and Intisar from class 4 for English recitation. Assalamu alaikum to everyone. My name is Sona Mandal. I am 11 years old in Jeff English Medium School, a unit of Chantal Jabir Advanced Public Trust. I want to recite a poem. The poem name is Cleanliness. बदलते देख लिया, शाहों को बदलते देखा है, शाही को बदलते देख लिया। इस्लाम की कश्ती का लेकिन सुल्तान न बदला जाएगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरआन न बदला जाएगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। सर लाख उठाएगा जालिम, होगी न पता हरगिज़ हासिल। सर लाख उठाएगा जालिम, होगी न पता हरगिज़ हासिल। हक वाले रहेंगे हक पे सदा, ईमान न बदला जाएगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरआन न बदला जाएगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। ईमान न बदला जाएगा, कुरआन न बदला जाएगा। सब दुनिया होगी मौत के दिन, आएगी मौत को मौत के दिन। सब दुनिया होगी मौत के दिन, आएगी मौत को मौत के दिन। कानून अटल है कुदरत का, एक आन न बदला जाएगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरआन न बदला। क्या बात है, तालियां बजाएं, तालियां बजाएं। मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। आज़ाद ये कह दो दुनिया से
जब तक ये मुसलमान जिंदा है, आज़ाद ये दुनिया से, जब तक ये मुसलमान जिंदा है, इस्लाम की ज़ेबो ज़ीनत का सामान न बदला जाएगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना, बदलेगा ज़माना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। ईमान न बदला जाएगा, न बदला जाएगा। What a brilliant performance. Everyone please clap your hand. ये नजरें ना होती ये नज़ारा ना होता, ये नजरें ना होती ये नज़ारा ना होता। आरिफ सर जैसे टैलेंटेड और एनर्जेटिक टीचर अगर हमारे बीच ना होते तो हमारा गुजारा ना होता। Now I would like to call our sports teacher Arif sir to showcase his creativity and talent. Sir, please come on the stage and motivate us with the valuable words. इबादत की तरह मैं ये काम करता हूँ, इबादत की तरह मैं ये काम करता हूँ। बात करने से पहले मैं सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू to everyone. I Arif Reza, I work here from last 4 years as an assistant teacher. अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व असहाबिहि व मन इत्तबा हुदाहु इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमीन व मुस्लिमा। Dear colleagues and dear parents and my beloved students, मैं आप लोगों के सामने मेरी बयान की शुरुआत में ही कुरान पाक और हदीस मुबारक से एक छोटी सी हदीस और कुरान पाक से एक छोटी सी आयत पेश किया हूँ। उसी के ऊपर मैं आप लोगों के सामने कुछ चंद बात गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो इस कुरानी आयत और हदीस के ऊपर बात करने से पहले मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। ना मैं महल बनाता हूँ, ना कोई लश्कर बदलता हूँ, ना मैं महल बनाता हूँ, ना कोई लश्कर बदलता हूँ। मैं एक टीचर हूँ, फकत बच्चों का किरदार बदलता हूँ। क्या बात है, क्या बात, तालियां बजाएं। जब हमारे नबी प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा पे अपने इबादत पर मशगूल थे, उस वक्त अल्लाह ताला जब हमारे नबी के ऊपर वही नाजिल किया तो उस वक्त गारे हिरा में हमारे नबी के पास उस वक्त वही आया, जिब्रील अमीन आए और कहे इकरा तुम पढ़ो। हम आप लोगों के सामने ये जो कुरान का आयत पेश किए हैं, जो कुरान में 96 नंबर सूरा और आयत नंबर 1 है, तो जो पाठ किए हैं, तो यही चीज़ कि जब वही आए जिब्रील अमीन ने फरमाया
कि ए नबी तुम पढ़ो, इकरा तुम पढ़ो। फिर हमारे नबी ने फरमाया मा आना भी कारिन, मा आना भी कारिन, मा आना भी कारिन। I don't know how to read, I don't know how to read, I don't know how to read। ये सिलसिला 3 मरतबा चलता रहा। उसके बाद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन ने अपने सीनों से दबोचा और ऐसा दबोचा कि लगा हमारे नबी की जान निकल रहे हैं, कि ऐसा लगा हमारे नबी को कि दाएं तरफ की पसली बाएं तरफ, बाएं तरफ की पसली दाएं तरफ जा रहे हैं। और इसी तरह कुरान का पहला आयत नाजिल हुआ और अल्लाह ताला भी हम लोगों को यही सारा दिखाता है, यही मंजिल दिखा रहा है कि ए उम्मती तुम पढ़ो, ए उम्मत तुम पढ़ो। पहला काम पढ़ने का है। उसी के बाद हम आप लोगों के सामने जो हदीस पाक से एक छोटी सी हदीस पेश किए हैं कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमीन व मुस्लिमा, कि हर मुसलमान मर्द हो या औरत सबके लिए इल्म हासिल करना फ़र्ज है। तो इसी तरह जैसे आप देखेंगे कि हर बच्चा से लेके बुरे तक सबको इल्म हासिल करना चाहिए। मैं मेरे बच्चों से बोलूँगा, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को यही बात बोलूँगा कि ये जो रस्सी है, इल्म का रस्सी जो है, ये रस्सी आज अगर हम मजबूती से पकड़ ले तो आज हर घर में APJ अब्दुल कलाम बन सकता है, मौलाना अबुल कलाम बन सकता है, सर सैयद अहमद खान बन सकता है। तो इसीलिए मैं मेरे बच्चों से बोलूँगा कि बच्चों पढ़ाई से डरना नहीं, किताबों से मोहब्बत करना है। किताबों से मोहब्बत तो जिंदगी संवर जाएगी, अगर किताबों से दुश्मनी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। और उसी के बाद मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आज ज़्यादातर बच्चे का जो देखते हैं, सबसे पहला चीज़ कि उसकी हेयर कटिंग, उसकी जो हेयर कटिंग है एकदम लाजवाब। शायद ये नबी ने हुक्म दिया होगा। क्या बोलते हैं चैप्टर्स, ये नबी ने हुक्म दिया है? नहीं नहीं, कभी नहीं। ये हुक्म दिया है नबी ने? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। जी, ये जो कभी हुक्म नहीं दिया है तो फिर आज हम ये काम क्यों करते हैं? आज हम ये काम क्यों करते हैं? तो वही सब कुरान और हदीस चाचल में बहुत जगह में देखेंगे आप। स्कूल तो बहुत सारे हैं, स्कूल तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन दीन और दुनिया की तालीम कोई भी स्कूल दे नहीं सका इस चाचल की सीने के ऊपर। क्या बात है, क्या बात है, तालियां बजाएं स्टूडेंट्स, तालियां बजाएं। खड़ा होके इस चाचल के ऊपर खड़ा होके दीनी और दुनियावी तालीम कोई दे नहीं सका, और यही काम हमारे स्कूल कर रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे चेयरमैन सर, डायरेक्टर सर और हमारे प्रिंसिपल सर का, जो ये लोग जो आज कर रहे हैं कि ये इंशाअल्लाह ताला बहुत ऊंचा मकाम मिलेगा, एक दिन बहुत ऊंचा मकाम मिलेगा। मैं और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ सभी पेरेंट्स से कि मैं भी समझ लीजिए, मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, मैं हॉस्टल वार्डन हूँ। तो ये जो हॉस्टल में 130 बच्चा रहते हैं, तो ये हमारे ही बच्चे हैं, आप लोगों का बाद में, पहले मेरा बच्चा है, उसके बाद आपका बच्चा। कि स्कूल के बाद स्कूल में जो 8 घंटा बच्चा रहता है, उसके बाद बच्चा घर में जाता है। मैं खास तौर से माँओं से गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका बेटा, आपका बेटी जब स्कूल से जाए, पहला काम उसकी बैग चेक कीजिएगा कि उसका बैग में क्या हुआ है। उसको पूछिएगा कि आज तुम्हारे क्लास में क्या पढ़ाई हुआ है। मैं तमाम माँओं से गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा इस पे नज़र दे, तो इंशाअल्लाह हमारा बच्चा भी आगे अच्छे बन जाएंगे। और मैं एक इसी शायर के साथ मैं अपना बयान ख़त्म करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम तो होने दो, कि अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम तो होने दो। मैं खुद लौट जाऊँगा, मुझे नाकाम तो होने दो, मुझे बदनाम होने का बहाना ढूंढता है ये ज़माना। अरे मैं खुद हो जाऊँगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। क्या बात है, क्या बात है। देखिए अभी थोड़ा वॉल्यूम को कम कर दिया गया था। जब जब नमाज का वक्त हो रहा है, हम लोग थोड़ा वॉल्यूम को कम कर दे रहे हैं। हालांकि हमारे डायरेक्टर सर का ऑर्डर है कि प्रोग्राम को थोड़ा बंद कर दीजिएगा।
उनको थोड़ा हम रिक्वेस्ट करके प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहे हैं, थोड़ा वॉल्यूम को कम कर रहे हैं। हालांकि पता है मुझे सर मेरे ऊपर बहुत नाराज़ हो रहे होंगे, लेकिन प्रोग्राम थोड़ा लंबा है, बोल के हम लोग को इस तरह से प्रोसेस करना पड़ता है, तो मैं इनको इसलिए रोका। यहाँ पे ये तकरीबन 3 साल से काम कर रहे हैं। टीचर्स के ग्रुप में इनका उम्र थोड़ा छोटा ही होगा, हमसे तो काफ़ी छोटे हैं, लेकिन यकीन मानिए ऐसा जैसे बोला मैंने आपको मौलाना शकील सर के बारे में, इनके बारे में भी सेम चीज़ है। मुख्तार सर भी और भी टीचर्स हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मेरी अम्मी का तबीयत खराब हो गया था, मैं 1 महीना स्कूल पे नहीं था, टोटली 1 महीना नहीं था। 230 बच्चे हमारे हॉस्टल पे अभी करंट है, लगभग 250 बच्चे हैं, मेल फीमेल मिला के। इन लोगों ने मुझे एक बार भी कोई परेशान नहीं किया, मैं अपनी माँ को लेके बिजी रहा। इन लोगों ने एकदम अच्छे से सब कुछ संभाला। ऐसा भी होता है कि मुझे हर एक वीक में मंथली बेसिस में मुझे बाहर जाना पड़ता है स्कूल के काम को लेके। बहुत टाइम पे कैजुअलिटीज आती है, रात को 12 बजे 2 बजे 1 बजे कोई बच्चा वॉशरूम में गया गिर गया, कोई कट वगैरह आ गया। आज तक जब से मैं इन लोगों को जानता हूँ, कभी भी कुछ भी बोला हूँ, एक बार में वो बात सुनते हैं। तो मैं जो बताया शकील सर के बारे में, सीरियसली ऐसा स्टाफ मिलना ये नसीब की बात है, जो हम लोग के पास ये आए हैं, हम लोग के साथ जुड़ के हैं। अल्लाह पाक से हम लोग दुआ करते हैं कि जब तक जेप्ट रहे तब तक ये लोग यहीं पे ही रहे, कहीं मत जाए। आई विल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, प्लीज क्लैप फॉर देम, स्पेशली फॉर आवर आरिफ सर। देखिए सुबह से ये वहाँ पे खड़े थे, कल रात को मुझे बोल भी रहे थे सर थोड़ा स्पीच देना है, कैसे क्या करें बताइए। इस बार हम लोगों ने ऑफिशियल मीटिंग में टीचर्स लोगों को बोल दिया है, मैं किसी का तारीफ नहीं करूंगा, अपने आइए अपने बोलिए, आपको लोग पहचाने। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, ताकि पेरेंट्स को समझ में आए। ये सारे टीचर्स जो अभी भी आ रहे हैं, इनसे पहले गुलाम सर आए थे, फिर और भी सर लोग आए, सब लेकिन चांचल के ही हैं। मैं ये आप लोग को बार बार बता रहा हूँ, ये चांचल के हैं, लेकिन इन लोगों को प्रॉपर गाइडलाइंस मिल रहा है, प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रहा है। बोल के अब सर से ही पूछ सकते हैं कि सर आपको आने में डर लग रहा था, ये शायद उनका फर्स्ट होगा प्रोग्राम जो स्टेज पे आके वो परफॉर्म किए। अब बताइए वो जो भी चीज़ बताए, कोई बुरा लगा, कोई चीज़ लगा देख के कि प्रोफेशनल स्पीकर है, अच्छे से बोल रहे हैं। सो प्लीज क्लैप फॉर एवरीवन। क्या बात है, तालियां बजाए बच्चों। हम लोग के ऊपर उम्मीद, हौसला, कोऑपरेशन इसी तरह रखिए। टीचर्स, बच्चे, हर एक कोई इस तरह इंशाल्लाह बढ़ता रहेगा आगे। थैंक यू सो मच आरिफ सर। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। और हम लोगों का बस 4 से 5 प्रोग्राम है, उसके बाद आज का प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अर्श से फर्श तक आज नूर ही नूर है, अर्श से फर्श तक आज नूर ही नूर है। आपका आना हमारे लिए एक बहुत बड़ा सुरूर है, आपका आना हमारे लिए एक बहुत बड़ा सुरूर है। लोग कहते हैं कि फरिश्ते ज़मीन पर नहीं रहते, लोग कहते हैं कि फरिश्ते ज़मीन पर नहीं रहते, मगर आपका चेहरा देखकर लगता है ये मेरी गलतफहमी ज़रूर है। Clap your hand for our guest. Now Dinat activity is a meaningful activity done by our little brother of class 4. The performance reflects moral and Islamic values. For Dinat activity, I want to call MD Arus. Please come up on the stage. आरूस, नासिम, जुनैद, इमरान, मोतीउर रहमान, असद, नजमीन। Assalamu alaikum to everyone. My name is MD Arus. I am studying in class 4. I am a student of JEP English Medium School, a unit of Chanchal Javir Educational Public Trust. In this special occasion of our annual function, I want to recite a Baitul Khan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैतुल खाने की जान की दुआ। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। थैंक यू।
Recitation helps us improve our English speaking skills, confidence, and also share good values throughout words. For recitation, I want to call Nasim, Junaid, Arus, and Imran. Please come up on the stage. Assalamu alaikum to everyone. My name is Asamaktal. I read in class 4. My school name is Jeb English Medium School, a unique of Chanchal Jabir Educational Practice. I want to say a poem. Poem name is the Real Bucket. Real Bucket. Everybody has two eyes. Bright and star, white and climb and not blue. Same as mine. Brown or blue, grey and green. What difference does it make? As long as can see the sun shining over you. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Junaid Isad from class 4, a unit of Jeff English Medium School, a unit of Chanchal Jabir Educational Public Trust. Today on this auspicious occasion, I want to recite a poem. The poem name is The Real Bucket. Everybody has two eyes, bright as a star they shine, but their color may not be just the same as mine. Brown or blue, grey or green, what difference does it make? As long as you can see the sun shining when you walk. Some folk hair is very black, some have blonde or brown, whatever color it may be, it's a pretty ground. Flowers have so many shadows, and I am sure you know many lovely gardens where such flowers. Children in this great big world and are flowers in a way. Some are light, some are dark, like a real bucket. Thank you. Assalamualaikum to everyone. My name is MD Imran. I read in class 4. My school name is Jeff English Medium School, a unit of Chanchal Jabir Educational Public Trust. Today I want to recite a poem. The poem name is The Real Bucket. The real bucket, everybody has two eyes. Bring as star their sign, but no, their color may not be just the same as mine. Brown or blue, grey or green, that difference does it make? As long as you can see the sun shining on your way. Thank you. Assalamu alaikum and very good morning to all of you. My name is Sanjaros. I am a student of class 4. I am a student of Jeff English Medium School, a unit of Chanchal Jabir Educational Public Trust. In this special occasion, our annual function, I want to recite a poem. The poem name is The Fly. Have you ever watched a fly climbing up a wall, then was across the ceiling and wandered it up to his under it of it to his amazing some other things. Thank you. Public speaking. Public speaking is a wonderful way to express ideas, share knowledge, and build confidence. Motiur Rahman, Asad, and Najmin come up on the stage for public speaking. Assalamu alaikum to everyone. Respected principal sir, chairman sir, director sir, vice principal ma'am, all the guests and dear students. I am Motiur Rahman from class 4 of Jeff English Medium School, a unit of Chanchal Jabir Educational Public Trust. Today we are gathered here to celebrate our 5th Winter Carnival Islami Muashira. Today in this special occasion, I want to recite a short speech. The speech name is Save Earth. Save Earth. Our earth is a beautiful place. It gives us everything we need: air to breathe, water to drink, food to eat, and land to live on. But now our earth is in danger because of pollution, cutting trees, and wasting natural resources. If we don't take care of our planet, it will harm all living things, including us. We should plant more trees, save water, keep our surroundings clean, and use less plastics. Let's promise today to love and protect our earth, and it is just beautiful and safe for us and future generations. Thank you. Assalamu alaikum to everyone. Respected teacher, principal sir, director sir, and chairman sir, and all my dear friends. I am Asad Ali. I read in class 4, a student of a Jeff English Medium School. Today I am going to speak about moon and artificial satellite. Moon, the natural satellite of the earth. The moon is a natural satellite of the earth that revolves around it. It is the largest satellite among other natural
artificial satellite. Man invented many scientific instruments or machines which are sent into space and orbit around the earth. These are called artificial satellite. Artificial satellite are two types, polar and stationary. Polar are used in telecommunication, mapping the earth and observing of weather pattern. Stationary satellite are used in global positioning system GPS. Thank you. Assalamu alaikum to everyone. My name is Tasmin Khatun. I read in class 4. My school name is Zep English Medium School, a unit of Chancellor Jaberokshire Public Task. My topic name is my hobby. My hobby is reading book. I enjoy reading book in my free time. Reading helps me learn new word and ideas. It also takes me to refer and word and teaches me many lessons. My favorite book are comics and funny tales. I read every day after finishing my homework. Reading makes me happy and help me relax. I love my hobby very much. Thank you. मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। Our next performance have prepared a special action song, हम असहाब के खादिम. So it's a request to Abdul Mumin sir, please bring your all students up on the stage. नवाज सर, वासिम सर, नेहा मैम, नस्मुन मैम, रिजवाना मैडम अपने अपने हॉस्टल्स के बच्चे को अपने साइड में लाइए। मुख्तार सर वहाँ पे आरिफ सर को रख दीजिए, अरशद सर को रख दीजिए। आप लोग इधर आइए सर। सारे बच्चे को दो ग्रुप में जो था, जैसे राइट हैंड में गर्ल्स लोग बैठेगी, लेफ्ट हैंड में बॉयज लोग बैठेगा। सलमान प्लीज लीव दिस प्लेस एंड गो दैट साइड एंड प्लीज मेंटेन देम। मुकर्रम प्लीज गो दैट साइड। ऑल द हॉस्टलर्स बॉयज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई गार्जियन भी अपने पास बच्चे को बैठा के रखा है, जो बच्चा हॉस्टल में रहता है, प्लीज लेफ्ट हैंड कॉर्नर में भेज दीजिए। अभी कुछ देर के बाद ही हम लोग का प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। नवाज सर, वासिम सर, आप लोग थोड़ा वहां से हटिए, ढूंढ के बच्चे को लाके यहाँ बैठाइए सर। सबको सामने कर दीजिए जहां रोशनी जा रहा है। रिजवाना मैम, नेहा मैडम, आप लोग भी प्लीज गर्ल्स हॉस्टल के बच्चे जो है राउंड लगा के देखिए कहाँ कहाँ पे है। मुख्तार सर, थोड़ा आप भी अपने फ्लोर के बच्चे को देखिए। वंस अगेन वी आर वेरी थैंकफुल टू चांचल पुलिस स्टेशन, स्पेशली द आईसी सर, जिन्होंने हम लोगों को प्रॉपर परमिशन दिया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का। एसडीपीओ सर, ठीक है, स्टार्ट द म्यूजिक। हम
जिसने पानी से ग़िज़ा पाई। इस्लाम वो शजर नहीं कि जिसने पानी से ग़िज़ा पाई। दिया खून सहाबा ने तो उसमें बहार आई। What a wonderful performance! Everybody please give a big round of applause for them. मुश्किलों को चीर दे वो आंधी और तूफान है हम। मुश्किलों को चीर दे वो आंधी और तूफान है हम। हुनर मेहनत और डिसिप्लिन का मिलन है हम। हुनर मेहनत और डिसिप्लिन का मिलन है हम। अपने दम पर जीतने वाले शेर मैदान है हम। Ladies and gentlemen, get ready to witness